बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। We know that physics is the science of physical quantities, study of physical quantities. Physical quantities may be directional physical quantities which are called vectors, and may be non-directional which are called scalar. Now what are vectors? Vectors are those physical quantities which have magnitudes, quantities and directions. These are also known as directional physical quantities. Displacement, force, momentum, etc. These are the examples of vector quantities. Now, how vectors are represented? So, representation of vector. Now, there are two types of representation. One is symbolic representation. Symbolic representation. Symbolically, vector is represented by bold face letter, बोल्ड पेस लेटर, मोटे लिखे हुए हरूफ. फॉर एग्जाम्पल, it denotes vector, it denotes vector, it denotes vector. These are bold face letter. Or by any letter having an arrow above or below it, and that is also known as by arrowed letters. In all letter, bold face letters are arrowed letters. Arrowed letters, those letters which have arrows above or below it. For example, it denotes vector, it denotes vector, it denotes vector. So this is what is symbolic representation. Bold face letter से हम denote करते हैं और arrowed letter से भी हम vector को denote करते हैं. Second one is graphical representation. Graphical representation. Graphically, vector is represented by straight directed line segment, and that is also known as by an arrow. Arrow is nothing but this is a straight directed line segment. This is the start point and this is the end point. This start point is known as tail and this is known as head, and it is a straight line having arrow head. So this arrow has two properties. One is length of the arrow. So length of the arrow represents the magnitude of the vector according to a selected scale. Magnitude of vector according to selected state. और दूसरा इसका arrow head है, and arrow head shows the direction. So graphical representation हम arrow से करेंगे. arrow के दो प्रॉपर्टी है. एक इसका लेंथ है. लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिनोट करता है अकॉर्डिंग टू अ सिलेक्टेड स्केल, और एरो हेड जो है इट शोज द डायरेक्शन. तो इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. मैग्नीट्यूड, सिंबॉलिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय magnitude of vector. It is represented by italic letters. Italic means, for example, A is a vector,
so it shows the magnitude of vector A. R by modulus, और modulus का ये मतलब है कि ये वेक्टर है, we enclose it into two parallel lines, इसको modulus कहते हैं, तो ये भी मैग्नीट्यूड डिनोट करता है और ये भी मैग्नीट्यूड डिनोट करता है. फॉर एग्जांपल, there is a vector A which is say 20 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन इसका ईस्टवर्ड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है. तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे या इसको इस तरह डिनोट करेंगे, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए, सिंपल ए इसको इटैलिक्स कहते हैं, और बाय मॉडुलस. अब डायरेक्शन हम कैसे सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं वेक्टर का. So direction of vector is denoted by unit vector. So unit vector, it specifies the direction only. So it is a vector whose magnitude is 1 and it is denoted by a capped letter. Capped letter. Like this one, it denotes a vector, so it will denote the direction of this vector A. The magnitude of this unit vector is equal to 1. Is equal to 1. यह 1 का मतलब है यूनिटी, यूनिटी का मतलब है कि इसके साथ यूनिट नहीं होगा. Now symbolically vector is denoted by any letter, its magnitude is denoted by italics or modulus, और इसका direction हम unit vector से denote करते हैं. So therefore as a whole any vector must be the multiplication of its magnitude and direction. तो ये magnitude denote करता है और ये direction. For example, इस example में अगर हम यूनिट वेक्टर लिखना चाहे तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल आवर वेक्टर इज 20 मीटर ईस्टवर्ड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर है, तो डायरेक्शन यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट यहाँ पर 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है. सो मैथमेटिकली वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड and direction, which is known as unit vector. Now there are some specific unit vectors. Specific unit vectors. Specific unit vector, physics में हम simplicity और for convenience एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए हम स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं. These are I unit vector which is used to denote the direction along x-axis. J unit vector, it is used to denote the direction along y-axis. Or K unit vector used to denote the direction along z-axis. ये स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स हैं एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अब वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. सो फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर वी यूज टू मेथड्स. नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्शन. ऑफ ए वेक्टर, इसका ये भी मतलब है कि हम एक वेक्टर को डायरेक्शन कैसे असाइन करेंगे, इसको कैसे बयान करेंगे. सो वन मेथड ऑफ द डिस्क्राइबिंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज जियोग्राफिकल डायरेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम जियोग्राफिकल एक्सिस भी कहते हैं. एक्सिस का मतलब है डायरेक्शन. इसका मतलब यह है कि वेक्टर की डायरेक्शन हम जियोग्राफिकल एक्सिस इस्तेमाल करके इसको बयान करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, तो दिस राइट वर्ड इट शोज द ईस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट वर्ड दिस शोज द वेस्ट डायरेक्शन, एंड इन फ्रंट दिस
the north direction, and backward it denotes the south direction. So if vector is in this direction, we say that it is eastward, this is westward, this is northward, and this is the southward. Now if a vector is in between north and east, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. इस तरह अगर यहाँ पर एक वेक्टर हो इन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, तो इसको हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, तो इसको हम जियोग्राफिकल डायरेक्शन कहते हैं. अब अगर एक वेक्टर नॉर्थ और ईस्ट के मिडवे ना हो, यानी बिल्कुल दरमियान में ना हो, फॉर एग्जांपल ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, एंड दिस इज आवर वेक्टर ए से. नाउ दिस वेक्टर मेक्स हियर स्मॉलर एंगल, से दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पर ज़्यादा एंगल बनाते से दिस इज 60 डिग्री. अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज डिस्क्राइब एज, ये 60 डिग्री ईस्ट के साथ बनाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. या इसके लिए अल्टरनेट ये भी हम लिख सकते हैं कि ये 30 डिग्री नॉर्थ के साथ बनाता है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. लेकिन पर कन्वेंशनली हम ये मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन से ईस्ट के साथ कितना एंगल बनाता है. सो दिस इज़ द मोर कन्वीनियंट एज दिस वन. सो इसको हम जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं. तो एक वेक्टर को जब हम डायरेक्शन असाइन करते हैं, तो हम जियोग्राफिकल एक्सिस इस्तेमाल करते हैं. और दूसरा तरीका जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हम इस्तेमाल करके एक वेक्टर के डायरेक्शन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस. कार्टेशियन का मतलब है परपेंडिकुलर, और कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है डायरेक्शन, और कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि हम इस परपेंडिकुलर लाइंस जो हम लेते हैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको हम डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. तो प्लेन में ये 2 होंगे और स्पेस में ये 3 होंगे. सो इन ए प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 2. ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन. दिस पॉइंट इज द ओरिजिन. तो कन्वीनियंटली हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं. अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को हम यहाँ एक एंगल से डिनोट करते हैं. तो यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस वी डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बाय एन एंगल. डायरेक्शन को हम एक एंगल से डिस्क्राइब करते हैं. डायरेक्शन इज डिस्क्राइब बाय एन एंगल. एंगल के लिए हम थीटा सिंबल इस्तेमाल करते हैं. दैट द वेक्टर मेक्स with positive x-axis in anti-clock sense. एंटी-क्लॉक सेंस का मतलब ये है कि एक वेक्टर है और उसका टेल मतलब है कि यहाँ से हम वेक्टर को स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है. अब इसकी डायरेक्शन को हम उस एंगल से डिस्क्राइब करते हैं जो कि ये पॉजिटिव एक्स के साथ बनाता है. लेकिन किस सेंस में बनाता है? वो एंटी क्लॉक सेंस में. इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्स के साथ ये 2 एंगल बनाता है. एक एंगल ये पॉजिटिव एक्स है. सो वन एंगल इज दिस इज एंटी क्लॉक सेंस, और दूसरा ये क्लॉकवाइज सेंस है. तो हम इस एंगल से डायरेक्शन डिनोट करते, इससे डिनोट नहीं करते. इसका ये मतलब है कि वेक्टर की डायरेक्शन को हम एक एंगल से डिस्क्राइब करते हैं, और ये एंगल ये किसके साथ बनाता है? पॉजिटिव एक्स के साथ, एंटी क्लॉक सेंस में. तो ये इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉक है, ये वाला नहीं है. अब ये इस एंगल का रेंज कितना है? तो रेंज इसका
its range is from 0 degree to 360 degree. इसका मतलब ये है कि when a vector is, this is positive x-axis, if vector is in this direction, this is vector A say. So this vector A makes a 0 degree angle with positive x direction. अब अगर this is x-axis and this is our vector A, so it makes how much angle? 180 degree angle. Now if the vector is in this direction, so anti-clock जो angle बनाता है, so that is this one. So it is 270 degree. Similarly, if the vector is in this direction, so we say that now it makes 360 degree. So therefore we say that the range of the angle that a vector makes with positive x-axis is from 0 to 360, यानी minimum 0 degree है और maximum जो है वो 360 डिग्री है. आखिर में मैं दो वेक्टर के दरमियान एंगल को डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज मेंट बाय द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. What is meant by the angle between two vectors? तो इसका आंसर ये है, बाय डेफिनेशन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स बाय द एंगल बिटवीन टू वेक्टर by the angle between two vector is meant the angle between the smaller angle between their tails or heads. इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी. Now there are two angles between these two vectors. One angle is this one and other angle is this one. Now this angle is smaller, this is greater, so the angle between these two vectors, we take this smaller angle between their tail. So actually here this is the angle between the two vectors which is less than 90 degree. अब यहाँ पर दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल this is vector A and this is vector B. So the angle between these two vectors, for example this angle is say 50 degree. So the angle between A and B is not 50 degree. Why? Because it is the angle between the tail of A and the head of B. और यहाँ एंगल से मुराद दोनों के टेल्स के दरमियान. अब ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल द एंगल बिटवीन ए एंड बी इन दिस फिगर इज 130 डिग्री नॉट 50 डिग्री. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे 130 डिग्री है और 50 नहीं है. तो यहाँ एंगल से मुराद दोनों के टेल्स के दरमियान स्मॉलर एंगल होगा या दोनों के हेड्स के दरमियान स्मॉलर एंगल होगा. अब एक का हेड है और दूसरे का टेल है, तो दिस इज़ नॉट द एंगल. तो अब हम इसके टेल्स मिलाएंगे या हेड्स मिलाएंगे तो देखेंगे कि स्मॉलर एंगल कितना है. तो इस डायग्राम को मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ कि दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी. अब इस बी को मैं यहाँ इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, द सेम डायरेक्शन है, लेकिन इसका टेल मैं यहाँ पर ले आता हूँ. अब ये टेल ए का है और ये टेल बी का है, तो इनके दरमियान स्मॉलर एंगल वो दिस इज़ द एंगल. अब यहाँ पर जो एंगल है वो 50 डिग्री है,
लेकिन हम ये दोनों के टेल्स के दरमियान ये एंगल है, अब ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 है, तो 180 से हम 50 माइनस करेंगे तो यहाँ दोनों के दरमियान जो एंगल है that is 180 minus 50 degree and it comes out to be 130 degree. So this is what is meant by the angle between two vectors. अब इसका रेंज कितना हो सकता है, तो range of the angle between two vector is from 0 degree to 180 degree. और इसका explanation ये है कि this is vector A say and this is vector B. अब इन दोनों पैरेलल है तो यहाँ पर एंगल जो है that is equal to 0 degree. अब अगर ये this is A vector and this is B vector, अब इन दोनों के दरमियान एंगल ये है which is greater than 0 degree. Now if this is A vector और ये B वेक्टर है तो इनके दरमियान एंगल 90 है. Now if this is A vector and this is B vector, तो इनके दरमियान जो एंगल है that is 90 that is 180 degree. अब अगर वेक्टर B हम ये ड्रा करें तो अब ये एंगल नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा एंगल है, ये स्मॉलर एंगल होगा and this is again less than 180. So therefore range of the angle between two vector is from 0 to 180 degree. So this was what about the introduction to vectors, जिसमें various points को मैंने explain किए. अल्लाह हाफिज़.